یہ کہانی ان 5 معصوم حسن بے مثال کی حامل شریف گھرانے کی لڑکیوں کی ہے جنہیں ابلیس اپنے پرفریب چال میں پھنسا کر سیدھے راستے سے بھٹکا دیتا ہے اور پھر انہیں پر اسرار قوتوں سے مالا مال کر کے شیطانیت کے فروغ کے لیے معاشرے پر مسلط کر دیتا ہے، جہاں وہ تباہی و بربادی کے ایسے باب رقم کرتی ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے، اور بالآخر شیطان کے ان شاگردوں کا ٹکراؤ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے سے ہو جاتا ہے، اور جس کے پاس ایک عظیم روحانی قوت کی مالک پر اسرار عورت کا آنا جانا تھا، اور جس کا تعین ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی روح تھی یا زندہ حقیقت۔ اور یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں دلچسپیاں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں، اور پھر شیطان کے چیلوں اور بندگان خدا کے درمیان ایک انوکھی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور چشم تصور کو وہ یادگار مار کے دیکھنے کو ملتے ہیں جن سے کہانی کے اختتام تک آنکھیں ہٹائے نہیں ہٹتی۔ آئیے شہزادے اندر آ جائیے۔ شہزادی نے فرق کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور ہم لوگوں کی وجہ سے آپ کو کتنی زحمت ہوئی، میں تو بڑی شرمندہ ہوں۔ میرے معزز اور حسین مہمان، زحمت کیسی، آپ کی میزبانی کا فخر تو میرے لیے باعث رحمت ہے۔ اور فرق آپ دونوں ہاتھ شہزادی کے شانے پر آ کر بولا، بیٹرس جی۔ اور بیٹرس نے جب فرق کی آنکھوں میں دیکھا تو سحر زدہ ہو کر رہ گئی۔ اسی لمحے ابلیس لعین کا مکروہ چہرہ فرق کی نظروں میں رقص کرنے لگا۔ اس نے تلملا کر بیٹرس کے آغوش کو ایک جھٹکے کے ساتھ چھوڑ دیا۔ بیٹرس میری جان، اب تم آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی۔ بیٹرس حیرت زدہ رہ گئی، اور فرق جواب خواب گاہ سے نکلتا چلا گیا۔ کیسا شریف اور پاک باز نوجوان ہے، بیٹرس نے مسکرا کر دل میں سوچا، اور تصور میں ایسے حسین محبوب کے گلے میں باہیں ڈال کر سو گئی۔ صبح ناشتے سے فارغ ہو کر شہزادی جب رخصت ہو رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں ایک پوشیدہ پیغام تھا۔ شہزادی نے دعوت کی واپسی کا وعدہ پہلے ہی لے رکھا تھا، اور آج کی شام قصر لارنس میں شہزادہ فرق جمال کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، اور چند خصوصی مہمان بھی مدعو کیے گئے جن میں بیٹرس کی حسین سہیلیاں بھی شامل تھیں، اور بیٹرس بڑے فخر کے ساتھ شہزادے سے ان کا تعارف کرا رہی تھی۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، اور اس مجلس میں فرق اگر آفتاب کی طرح چمک رہا تھا تو بیٹرس چاند بن کر جلوے دکھا رہی تھی۔ شام تو بڑی بہار آفری گزری، اور پھر ذرا دیر کے بعد دوران تام پچھلی شب کی طرح طوفان کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ بہار آفری گزری، اور پھر ذرا دیر کے بعد دوران تام پچھلی شب گاہ کی طرح وینس میں قیامت خیز طوفانی یادیں ابھی تازہ تھی، اور اسی لیے مہمان خوف سے کانپنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پیلس کی طرف سے بادلوں کی گڑگڑاہٹ بلند ہوئی اور طوفانی جھکڑ شروع ہو گئے۔ تو عام سے فارغ ہو کر مہمان تو رخصت ہونے لگے، لیکن شہزادی نے فرق کے کان میں سرگوشی کی، کل کی مہمان نوازی کا بدلہ چکانا ہے، اور بھاگنے کی کوشش نہ کرے حضور۔ اور فرق کے ہونٹوں پر ایک شیطانی تبسم رقص کرنے لگا۔ اپنی خواب گاہ میں فرق پہرو بدل رہا تھا، اور دوسری خواب میں بیٹرس جاگ رہی تھی۔ اکاؤنٹ زیادہ پی جانے کی وجہ سے اپنی خواب گاہ میں مدہوش پڑا تھا، اور بیٹرس سے آخر ضبط نہ ہو سکا، اور دبے پاؤں فرق کی خواب گاہ پر جا کر دستک دی۔ فرق تو اسی انتظار میں تھا، دروازہ کھولا اور دونوں ہم آغوش ہو گئے۔ بیٹرس جذبات سے مغلوب ہو کر فرق کی باہوں میں جھول گئی، اور فرق نے اپنی مضبوط باہوں میں اسے سنبھالا اور دھیرے سے مسحری پر اسے لٹا دیا۔ بیٹرس بے حد مضطرب دکھائی دی، اور مگر فرش ہوش میں تھا، اور 2 شعلہ اگلتی ہوئی شیطانی آنکھیں اس کو گھور رہی تھیں۔ اس نے شیطان پر پہلے تو لعنت بھیجی، اور پھر شہزادی کے گلے میں باہیں ڈال کر بولا، جانے آرزو، ہمارے لیے سخت ترین امتحان کا لمحہ ہے، اور اگر ایسے نازک موقع پر ہم میں سے کوئی بھی ایک بھی اپنے نفس سے مغلوب ہوا تو محبت کی پاکیزگی ہمارا مذاق اڑاتی پھرے گی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کل کی شام ہمارے لیے ایک تاریخی شام ہوگی۔ ہم دونوں ابلیس کے عظیم محبت میں اپنی محبت کا اقرار کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نباہ کا عہد کریں گے، اور جملہ دونوں کے تڑپتے ہوئے لبوں کے تصادم پر ختم ہو گیا، اور یوں شیطان لعین کا دوسرا مقدس تحفہ بھی قبول ہو گیا۔ جب رات زیادہ ہو گئی اور بیٹرس قصر لارنس میں نہیں لوٹی تو کاؤنٹ گھبرا کر فرق کے پاس دوڑا آیا، اور فرق بڑی چالاکی سے مکر گیا، شہزادی یہاں تو نہیں؟ مگر وہ تو یہ کہہ کر چلی تھی کہ تم سے ملنے جا رہی ہیں۔ یقین کریں کاؤنٹ، شہزادی میرے پاس پہنچی ہی نہیں۔
इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इस सिलसिले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। आप क्या फरमा रहे हैं मोहतरम बुजुर्ग? मेरी जान भी इस सिलसिले में काम आई तो मैं दरेग नहीं करूँगा। फिर बताओ कि वो कहाँ है। इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं, या फिर आपके अजीज़ो अकारब, दोस्त, सहेलियाँ और मेरे आदमी हर जगह से बेनीलो मराम वापस आ चुके हैं। और बूढ़ा अकाउंट आंखों में आंसू भर लाया। फिर मैं अपने सारे आदमी उसकी तलाश में रवाना करता हूँ। उसने ताली बजाई और अफसर आला दाखिल होकर ताज़ीमन झुक गया। देखो तुम लोग शहजादी बैटरस को पहचानते हो, और वह सरे शाह मुझसे मिलने अपने महल से रवाना हो गई थी, मगर यहाँ नहीं पहुँची। और तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ और कोना कोना चप्पा चप्पा छानो, और जहाँ भी मिले इज्जत व एहतराम के साथ यहाँ ले आओ। और अफसर आला ने मौदबाना अपने सर को खम किया। और हाँ देखो, और अगर वह पुर इसरार भेड़िया कहीं नजर आ जाए तो फौरन शूट कर दो। चलो जल्दी करो। और दूसरे दिन पुलिस भी हरकत में आ गई और अखबारों ने भी लंबी चौड़ी सुर्खी जमाई, मगर नतीजा कुछ ना निकला। और इतना ज़रूर हुआ कि उन 2 हादसों के बाद और पुर इसरार भेड़िए की तलाश के सिलसिले में एक पुर इसरार घोड़े के समूह के निशानात ने कसरे जमाली तक रहनुमाई की। उससे पुलिस की नज़रों में फ़र्क जमाली काफ़ी मशकूक हो चुका था, मगर सोने की मोहर पुलिस के सारे आला हकाम के लबों पर लग गई और फ़र्क जमाल का कोई बाल बीका ना कर सका। इस तरह दिन, हफ्ते और महीने गुजरते रहे और फ़र्क जमाल पहले से कहीं ज़्यादा हसीन, पुरकशिश और ताकतवर होता गया। तीसरी और चौथी महम उसने चुटकी बजाते सरकूब की, और अब वो काफ़ी मोहतात हो चुका था। अपने महल से उन मुकद्दस कंवारियों को महल से दूर ही रखने की कोशिश करता, और बाला ही बाला अपनी मोहब्बत के जाल में उन्हें उलझाकर अहद व पीमा के बहाने दारुल इब्लीस ले जाता, और उसी तरह शैतानी तोहफे कबूल होते रहे। उसकी हुस्न दिलकशी में जिस शिद्दत के साथ इजाफा होता रहा, उसी शिद्दत से वह सख्त दिल बनता रहा। अलबत्ता कभी कभी उसका ज़मीर चंद लम्हों के लिए बेदार हो जाता, और वह सोचता, ऐसी दौलत, हुस्न शबाब किस काम का वह अपनी किसी पसंदीदा हसीना की दोशीज़गी से लुत्फ़ अंदोज़ भी नहीं हो सकता। और शैतान लईन से बगावत का ये जज्बा अक्सर इतना शदीद होता कि वो अपने रूमानी दौरे के दरमियान कभी कभी बहक कर दरिंदा बढ़ जाने की कोशिश करता, मगर वो मकरू सूरत और शोला बरसाती आंखें उन आंखों से टकराते ही वो होश में आ जाता। उसी तरह तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी कुंवारी भी शैतान की भीड़ चढ़ गई। हर चांद की 14वीं को वो इंसान से भेड़िया बनकर तबाहियां मचाता, मगर उसका कोई कुछ ना बिगाड़ सका। इंटेलिजेंस के मशहूर और मारूफ आल्सर जैक मार्ले की दिलचस्पियाँ इस हद तक बढ़ी कि वह 14वीं की चांद का शिद्दत से इंतज़ार करने लगा, और छठी महम के बाद उसने फौजी तावन हासिल करके गिरदो नवा के सारी बस्तियों और जंगलों में घेरा डाल दिया। फ़र्क जमाल की ये आखिरी चांद रात थी, और 7वीं और आखिरी कंवारी की शबी वो अपने मुहावजे में महफूज कर चुका था, और उसके बाद ही वो अमर होने वाला था, हयात अब्दी का मालिक। चांद निकलते ही वो मामूल के मुताबिक दाने को एक झाड़ी से भेड़िया बनकर निकला, और कबल इसके कि वो अपनी दरिंदगी का आगाज़ करे, मसला फौजियों ने उस पर धावा बोल दिया। वो जिधर जिधर भागता उधर उधर घबरे घेरे का सामना करना पड़ता। गोलियां चली, मशीनें गन भी इस्तेमाल हुई, मगर वह बेखौफो खतर बस्ती में घुसता चला गया। जैक को चौंका तजर्बा था कि इस पुर इसरार भेड़िए पर गोलियां असर अंदाज नहीं होती, इसलिए इस मौका पर वो दरिंदे को गिरफ्तार करने का मंसूबा बना चुका था। लेकिन कबल इसके कि उस पर जाल फेंके जाएं, वो 3 लाशों का खून पीकर फरार हो गया, और उस रात उस पर जाल फेंककर गिरफ्तार करने के सिलसिले में 7 हमला हुए। 7वां हमला इतना खतरनाक था कि वह चारों तरफ से जालों के नरगे में घिर गया। जब वो बेबस हो गया तो उसने शैतानी कुव्वत का सहारा लिया, और जालों की बंदिशें आग के शोलों की नज़र हो गईं, और खौफनाक भेड़िया वाकई खून आशाम दरिंदों बनकर फौजियों पर टूट पड़ा। 4 फौजियों का खून पीकर जब उसने अंगड़ाई ली तो जालों के एक ताज़ा हमले ने उसका इस्तकबाल किया, और तो वो भेड़िए से एक द्यो पेकर अकाब बनकर फिजा की बुलंदियों में तैरता हुआ पहाड़ की चोटियों में गुम हो गया। दूसरी सुबह वो डगमगाते कदमों के साथ कसरे जमाली में दाखिल हो रहा था, तो जैक मार्ले ने उसका इस्तकबाल को खड़ा था, और सुबह बगैर शहजादे साहब, मगर फ़र्क ने कोई जवाब ना दिया। शहजादे, आपके होंठ खून आलूद हैं, और क्या मैं आपको सहारा दे सकता हूँ? फ़र्क ने उछल कर जैक के सीने पर इतनी शदीद लात मारी कि अगर वो गैर मामूली ताकत का इंसान ना होता तो उसकी पिसलियाँ यकीनी तौर पर टूट गई होती। अच्छा प्यारे शहजादे, और तुम्हारे ताबूत में आखिरी कील का वक़्त आ गया है। और वह गर्दन झाड़ता हुआ बोला, मगर फ़र्क अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हो गया था। ऐरान की
परी जमाल शहजादी कुदसिया नाज आफरी अपने वालिद मोहतरम अकरम कमाल पाशा ईरानी फ़ौज के मारूफ कर्नल के साथ सैर व तफरीह की गर्ज से यहाँ आई हुई थीं और जल्द ही शहजादी के हुस्न जमाल का चर्चा दूर दूर तक फैल गया और एक शाम नाइट क्लब में उसका सामना फ़र्क जमाल से हो ही गया। अकरम कमाल की तेज़ और तजर्बा का नज़रों ने भांप लिया कि इस शख्स की आंखों में एक मशहूर कुन कशिश है जो भोली भाली लड़कियों के लिए तबाह कुन साबित हो सकती है और उसके अलावा मुल्क के गोशे गोशे से शहजादी के रुखे ताबा से टकराने वाली हवसनाक निगाहों से दिल बर्दाश्ता होकर वो बेदारी सी महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी परी जमाल बेटी का हाथ पकड़ा और क्लब से निकलना चाह ही रहे थे कि फ़र्क जमाल उकाब की तरह झपड़ कर उनके सामने आ गया। अस्सलाम वालेकुम सैयदी। और अकरम कमाल को बादल नखवास्ता मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाना पड़ा। कहिए आपको ये शहर पसंद आया? और शहजादी साहबा आपको? कुदसिया की नज़रें चार हुई और उसने एक मामूल की तरह अपना दायां हाथ फ़र्क की तरफ बढ़ा दिया। फ़र्क पहले तो ताज़ीम के लिए झुका और फिर उसने कुदसिया का नरमो नादक हाथ में लेकर उसको लबों से लगा लिया। और इतनी जल्दी क्या है सैयदी? अभी तो क्लब की सरगर्मियां अरूज पर भी नहीं पहुंची। आइए हम लॉन में बैठकर एक कप काफ़ी पी लें। और साथ ही फ़र्क ने बेतकल्फ़ी के साथ अकरम कमाल का हाथ अपने हाथ में ले लिया और दोनों बाप बेटी उसकी दरख्वास्त मुस्तरद ना कर सके। मैंने आप दोनों मुअज़्ज़ज़ हस्तियों की आमद की खबर अखबार में पढ़ी थी और अखबारी फ़ोटो से मुशाबत की बिना पर फ़ौरन पहचान गया। मैं भी परदेसी हूँ और मेरा नाम फ़र्क जमाल है और वीनस की सकूनत के बाद यहाँ एक मुअज़्ज़ज़ शहरी की हैसियत से ए मुदसन्नत बहसे खुशनुदी कहता हुआ दोनों का खैर मकदम करता हूँ। मेरा नाम तो अखबार शाया कर चुका है और वैसे ये कोई सरकारी दौरा नहीं। और शहजादी का पूरा नाम कुदसिया नाज आफरी है, अकरम कमाल ने कहा और एक बार फिर उसके गर्म जोश मुसाफे से दोनों बाप बेटी को दो चार होना पड़ा। अब अकबर कमाल के तेवर ठीक हो चुके थे और कुदसिया तो फ़र्क के हसीन खदो खाल के पीछो खाम में उलझ कर गुम हो गई। और जल्द ही फ़र्क ने अकरम जमाल को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में ऐसा उलझाया कि वो उस पर फरिश्ता हो गए। तो आप ईरानी हैं शहजादा फ़र्क जमाल? हम दोनों कसरे जमाली में हाज़िर होकर आपकी रंगीन मोहब्बतों से मुस्तफ़ीद होने की यकीनन कोशिश करेंगे। ज़रूर ज़रूर मोहतरम बुज़ुर्ग, और ये इस खाकसार की बहुत बड़ी इज़्ज़त अफजाई होगी। और आप शहजादी साहबा, मुझे आप ये इज़्ज़त ज़रूर बख्शें कि इस हसीन शहर के मशहूर व मारूफ मकामात की सैर करा सकूं। ज़रूर शहजादे, और मेरी दिली ख्वाहिश भी यही है कि आप जैसा मुअज़्ज़ज़ गाइड मुझे कहाँ मिलेगा। और वह हंस दी और जैसे ही बाप बेटी का क्लब से निकले एक अजनबी ने उनका रास्ता रोक लिया। बदअखलाक़ी के इस मुज़ाहरे के लिए माज़रत चाहता हूँ जनाब, मेरा नाम जैक मार्ले है। और उसने अपना शनाख्ती कार्ड जेब से निकाल कर पेश कर दिया। अकरम कमाल ने तेवरी पर बल डालकर कार्ड पर सरसरी नज़र डाली और मुतहरीना अंदाज में जैक से मुखातब हुआ। मगर जनाब, हम दोनों बाप बेटी जायज़ पासपोर्ट और वीज़ा के साथ इस शहर में दाखिल हुए हैं। ये बात नहीं है मोहतरम, जैक मुस्कुराया। और मेरे फ़राद में ये भी शामिल है कि उस शख्स से आपको ख़बरदार करूँ और जिससे अभी तक आप गुफ्तगू कर रहे थे। और क्या ये कोई ख़तरनाक मुजरिम है? अभी तक तो इतना ही है कि उसकी हैसियत पुरअसरार होने की वजह से मशकूक है, यानी फिल हकीकत ये कोई ईरानी शहजादा नहीं। तो फिर ज़रा वजाहत करें अफीसर। आपने सुना होगा कि इस शहर में एक पुरअसरार भेड़िए की दरिंदगी ने नवाही बस्तियों में वहशत फैला रखी है और ये दरिंदा हर चांद की 14वीं को इंसानी खून से सैराब होकर कब्ल अज सहर गायब हो जाता है। और मैंने सुना है, अकरम कमाल ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, मगर इस वाक़े का शहजादे फ़र्क से क्या तल्लुक़? यही अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ मोहतरम। फरमाइए, मैं गोश पर आवाज़ हूँ। आपने सिलसिलावार 6 परी जमाल और 2 शेज़ाओं की पुरअसरार गुमशुदगी के बारे में ज़रूर सुना होगा। सुना है फिर? और वो 2 शेज़ाएँ इस शख्स के पुरफ़रेब हुस्न जमाल से मुतासर होकर इसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार हुई और उसका सबूत मिल चुका है, लेकिन वो किस तरह पुरअसरार तौर पर गायब हो गई, इस राज़ सरबस्ता की कड़ियाँ भी बगैर किसी ठोस सबूत के हाथ लग चुकी हैं। और ये खून आशाम भेड़िया और फ़र्क जमाल एक ही तस्वीर के 2 मुख्तलिफ रूप हैं। इसका मतलब ये है कि आप फ़र्क जमाल का कोई पलीद रूह साबित करना चाहते हैं। जनाब कमाल साहब, ये दुनिया महिरल अकूल कारनामों से भरी पड़ी है और कोई शैतानी चक्कर समझ लें। सबूत फराहम करने की कोशिश में गुज़श्ता रात 4 रात में मैंने फ़ौजी तावन हासिल करके एक ज़बरदस्त घेरा नवाही बस्तियों और दामने को के जंगलों में डाला। तजर्बा बता चुका है कि उस दरिंदे पर गोलियां असर अंदाज नहीं होती, इसलिए मैंने उलझा कर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। मगर जब ये चारों तरफ जाल में फंस कर बेबस हो गया तो आपको मालूम है कि क्या हुआ।
سارے جالوں میں آگ لگ گئی اور 4 فوجیوں کا خون پی کر وہ بھیڑیے سے ایک دیوک پی کر عقاب کا روپ دھار کر پرواز کرتا ہوا پہاڑ کی چوٹیوں میں روپوش ہو گیا۔ اگر فرق کو ایک انسانی شیطانی بلا مان بھی لیا جائے تو میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بہت کچھ اکرم صاحب۔ فرق حسن اور دوشیدگی کا شکاری معلوم ہوتا ہے، اور شہزادی صاحبہ میں دلچسپی لیتے وقت میں نے اس کی آنکھوں میں ہوس ناکی کے ساتھ ساتھ درندگی دیکھ لی ہے، اور جو اس کی مسحور کن آنکھوں کے گوشوں میں چھپی نہیں رہ سکی۔ آپ بے فکر رہیں مسٹر جیک، قدسیہ ایک بہادر قوم کی نڈر لڑکی ہے، اور پھر ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے ایمان پر کوئی شیطانی طاقت غالب نہیں آ سکتی۔ پہلی بار شہزادی قدسیہ ہم کلام ہوئیں، اور مسٹر جیک آپ مجھ پر مکمل بھروسہ رکھیں، اس سنگین معاملے میں میں آپ سے ہر قسم کے تعاون کا وعدہ کرتی ہوں۔ اس نے جیک کی طرف ہاتھ بڑھا دیا اور جس کو اس نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ چوم لیا اور بولا، شکریہ عفت ناک شہزادی صاحبہ، اور آپ نے شاید قصر جمالی جانے کا وعدہ کر لیا ہے اور اس کی گائیڈ کی خدمات کو بھی قبول کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے تو ہے مسٹر جیک، قدسیہ نے تبسم زیر لب تسلیم کیا، اور اگر شام کو بل سے نکلنے پر مجبور کر دیا جائے تو اس کا سر کچلتے کیا دیر لگتی ہے، اور کیا میں آپ کو خود اعتمادی پر مکمل بھروسہ کر لوں؟ یقیناً مسٹر جیک، اور میں آپ کو ہر قدم پر باخبر رکھنے کی کوشش کروں گی۔ شکریہ، اور ایک بار پھر شکریہ شہزادی صاحبہ، اور آپ ایک باہمت اور حوصلہ خاتون ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کا بچھایا ہوا جال اس شیطان کے لیے جنجال بن جائے گا، اور میں بھی ہر لمحہ رابطہ قائم رکھوں گا۔ اس دوران فرق جمال کلب کی حسین ناؤں میں گرا ہوا ان سے جان چھڑانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ کلب کے مشہور گلوکارہ جیکولین اس کی طرف مسکراتی ہوئی بڑھی۔ ہیلو پرنس چارمنگ، آج تو آپ باغ بہار دکھائی دے رہے ہیں، اور تم جانے بہار، فرق نے ٹکڑا لگایا۔ تو پھر آئیے ہم کیوں نہ گل کھلائیں، اور پھر جیکولین نے فرق کا ہاتھ پکڑ کر رقص گاہ میں کھینچ لیا۔ شہزادے تم کتنے حسین ہو، اور جیکولین گنگنائی۔ اور تم میجبینوں کی میجبیں، فرق نے ٹکڑا لگایا۔ مگر تم کتنے سنگ دل، میجبی نے دوسرا مصرع اڑایا۔ اور اتنا بھی نہیں کہ ایک حسینہ کا پیار ٹھکرانے کی ہمت کر سکوں، اور فرق نے مکھن لگایا۔ سچ، جھوٹ بھی نہیں۔ اور جب راؤنڈ ختم ہوا تو جیکولین اس کی باہوں میں جھولتے ہوئی کار میں بیٹھ گئی، اور ساتھ ہی فرق جمال کی کار کے عقب میں ایک دوسری کار لگ گئی۔ اور جب فرق کی کار قصر جمالی کی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو تعاقب کرنے والی کار بہت دور جا رک چکی تھی۔ تمہارا محل تو بہت شاندار ہے شہزادے، اور جیکولین اٹھلائی، اور آج اس کی شان میں 4 چاند لگ گئے، سچ۔ اور جب جمال خواب گاہ میں داخل ہوا تو جیکولین بستر پر درا تھی، اور اچانک فرق پر جیسے درندگی کا دورہ پڑ گیا۔ پہلے تو اپنی ساری پوشاک سے بے نیاز ہو کر سرتاپا برہنہ ہو گیا، اور پھر بھیڑیے جیسی گڑراہٹ کے ساتھ بستر کی طرف بڑھا۔ جیکولین اس کی آنکھوں سے شعلے نکلتے دیکھ کر خوف سے کانپ گئی، اور تڑپ کر بھاگنے ہی والی تھی کہ فرق کے طویل اور تنو مند بازوؤں نے اس کو دبوچ لیا۔ اس کے جسم کے ہر حصے میں درندوں جیسے بال اگ گئے، اور چہرہ بھیانک ہو گیا۔ اب جیکولین کو ایک بے حس پرندے کی طرح اس کے 2 پیکر جسم کے نیچے پھڑ پھڑا رہی تھی، اور فرق کو سال ہا سال کی بے بسی کے بعد اپنی آسودگی کے لیے پہلی بار موقع ملا۔ ابلیس نے اپنی محبوباؤں کی بھیڑ کے چکر میں اسے اس لذت سے محروم رکھا تھا، اور آج وہ نصف انسان تھا، نصف درندہ تھا۔ کافی جد و جہد کے بعد بھی جب اسے آسودگی نہ ہوئی تو اس نے جلا کر جیکولین کا زیر جمع ادھیڑ دیا، اور اس کے لباس کو تار تار کر دیا۔ جیکولین خون میں نہا چکی تھی اور قریب بے ہوش تھی، اور فرق نے 2 تیز نوکیلے دانت اس کے نرکڑے میں گاڑ دیے۔ جیکولین کے دردناک چیخوں سے قصر جمالی کے در و دیوار لرز گئے، اور یہاں تک کہ اس کے جسم سے خون کا ہر قطرہ غائب ہو گیا، اور اس کی بے جان لاش اکڑ کر رہ گئی۔ اس طرح جیکولین کو اپنی درندگی کی بھینٹ چڑھانے کے بعد فرق نے اس کا بے جان جسم بستر میں لپٹا کر پشتارہ بنایا، اور اٹھا کر محل کی چھت پر آ گیا۔ نیچے دریا زور و شور کے ساتھ بہہ رہا تھا، اور چھاپ کی آواز کے ساتھ پشتہ موجوں کے رحم و گرم پر بہتا ہوا آن کی آن میں نظروں سے اجل ہو گیا۔ فرق جمال ابھی سو کر اٹھا بھی نہیں تھا کہ افسر اعلیٰ گھبرایا ہوا داخل ہوا۔ شہزادہ علی وقار پولیس کا ایک مسلح دستہ جیک مارلے کی سربراہی میں گیٹ پر کھڑا ہے، اور ان کے پاس آپ کی تلاشی کا وارنٹ ہے۔ فرق جمال نے بستر سے چھلانگ لگائی، اور ایک ہلکی سی شکن اس کے آبرو پر نمودار ہوئی، اور پھر ایک تبسم کے ساتھ اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا اور بولا، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ۔ افسر اعلیٰ سیلوٹ کر کے الٹے قدموں واپس ہو گیا، اور پھر اس نے جلدی خوابگاہ اور گردنواں کا زینے سے لے کر چھت تک بغور جائزہ لیا، اور مطمئن ہو کر باتھ روم میں داخل ہو گیا۔
जब वो फुल ड्रेस में ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो जैक मार्ले इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। सुबह बखैर मिस्टर मार्ले, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जैक ने मुस्कुराकर तलाशी का वारंट पेश किया। मगर क्यों और मेरी क़यामगाह की तलाशी आप किस बिना पर लेना चाहते हैं? जैक ने बड़े एहतराम के साथ सर को खम किया और बोला, और शहजादे साहब को गुज़श्ता रात जैकोलिन के साथ क्लब में रक्स करते देखा गया और फिर शहजादे साहब उसको अपनी कार में बिठाकर कसरे जमाली ले आए। लेकिन क्या यह हैरत की बात नहीं शहजादे साहब कि जैकोलिन के महल से बाहर जाते किसी ने नहीं देखा, मगर जैकोलिन तो अपने घर के करीब कार से उतर गई थी। तलाशी के बाद ये सही बात मालूम हो सकती है। वैसे शहजादे साहब की इत्तला के लिए अर्ज है कि जैकोलिन अपने घर पर नहीं पहुंच सकी और जैक ने बड़ी संजीदगी के साथ जवाब दिया, देखो मिस्टर मार्ले, मैं छोटे छोटे अफसरों को मुंह लगाना पसंद नहीं करता। तुम तलाशी ले सकते हो, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो तुम्हें यह तलाशी महंगी पड़ेगी। हम छोटे लोग काफ़ी फर्जनाद होते हैं, इसलिए सबसे पहले अपनी ख्वाबगाह तक मेरी रहनुमाई करें। आपकी बड़ी नवाजिश होगी जनाब शहजादे साहब। जैक मार्ले एक ज़हीन और निडर जासूस था और अब तक वो काफ़ी छानबीन करके इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि फ़र्क जमाल एक फ़राड है। वो इंसानी रूप में एक मुजस्समे शैतान है और उसके पास गैर इंसानी ताकत है, जिससे वो मगलूब और मशहूर करके शहर की हसीन दो शेजाओं को अपने दाम में गिरफ्तार करके उन्हें दारुल इब्लीस ले जाता और उन्हें अपनी जिंदगी की भीड़ चढ़ा देता। वो शैतानी मुआहदे से कतई नावाकिफ था, पर इतना ज़रूर जानता था कि इसका उन कारनामों के पसे पुष्ट दारुल इब्लीस से ज़रूर कोई ताल्लुक है, और इसलिए वो इस फिक्र में था कि फ़र्क को रंगे हाथों पकड़े। यही वजह थी कि उसने पूरे यकीन के साथ शहजादी कुदसिया का तावन हासिल किया, वरना फ़र्क जमाल की दौलत से हकामे बाला काफ़ी मरूब हो चुके थे और बगैर किसी तावन के उस पर हाथ डालना शेर के मुंह में हाथ डालने के मुतरादिफ समझते थे। ख्वाबगाह का चप्पा चप्पा छाड़ मारा गया और मुलाजमीन से देर तक पूछ गुछ होती रही और आखिर एक जनाना हीटर पन में सहरी के नीचे पड़ी जैक को मिल ही गई और जिसको किसी औरत की निशानदेही कर रही थी, और यकीनन वो जैकोलिन के सवार किसी की ना होगी। जैक को पेन उठाते देखकर फ़र्क के चेहरे पर पहले तो घबराहट के साए नमदार हुए और फिर वो संभल गया। जैक ने हिफाजत से उस हेयर पेन को अपनी जेब में रख लिया और थोड़ी देर के बाद महल में सन्नाटा छा गया। शाम को फ़र्क ने अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की ज़ियाफ़त का काफ़ी एहतमाम कर रखा था और बड़ी बेचैनी से अकरम कमाल और परी जमाल कुदसिया का इंतज़ार कर रहा था। शाम ढलते ही बाप बेटी बड़े क्रोफर के साथ अपनी गाड़ी से उतरे और फ़र्क जमाल ने उनका शेयान शान इस्तकबाल किया। पहले तो फ़ख्र से उन्हें कसरे जमाली का गोशा गोशा दिखाया और फिर ड्राइंग रूम में आकर गिटार पर एक धुन बजाकर मेहमानों की पजीराई की और शहजादी ने उसकी खुशगुलूनी की खूब दाद दी और ख़ुद पियानो पर एक धुन छेड़कर फ़र्क के ख्वाबीता जज्बात को बेदार कर दिया। वो बेचैन होकर अकमल कमाल के पहलू से उठ बैठा और बेताबी के आलम में कुदसिया के आगे पियानो पर हाथ थपकर अपनी बेचैन निगाहें उसके हसीन चेहरे पर गाड़ दी। 6 कंवारियों के हुस्न मासूम में से सिर्फ 2 ने उसके साथ जज्बात को छेड़ा था और ये 7वीं, ये तो सरापा क़यामत थी और इस क़यामत ने उसके दिल में तूफ़ान मचा रखा था। कुदसिया की आंखें फ़र्क की मुस्तरिब नज़रों से दो चार हुईं और उसके दिल में मोहब्बत की चिंगारियां फूट पड़ीं। फ़र्क जमाल की मर्दाना हुस्न जमाल और सहाराना तर्ज अंदाज से काफ़ी मरूब थी और वह जैक के शुबहात और दलाइल पर यकीन करने पर तैयार न थी, मगर वो काफ़ी ज़हीन भी थी। उसने सोचा कि फ़र्क की आंखों में कौन सा सहर है कि नज़रें चार होते ही प्यार का सोता फूट पड़ता है और वह जब तक करीब रहता है उसका दिल सीने में धड़कता रहता है और ये गलबा शिद्दत इख्तियार करता रहता है। जब वो दूर हो जाता है तो ये मदम पड़ जाता है, आखिर ये क्या है और क्यों है। उसकी आंखों से फूटने वाली पुरइसरार शुआएं उसके दिल की गहराई में उतरती क्यों चली जाती हैं और फिर इन सारे सवालों का जवाब उसे जल्द ही मिल जाता और माफूकल फितरत गैर इंसानी हिप्नोटिज्म, और फिर वो खुद ही सोचती और खौफ की कोई वजह तो नहीं, और अगर बकौले जैक मार्ले कि ये कोई शैतानी चक्कर है और फ़राक वाकई वो दरिंदा है जिसका मकसद हुस्न शबाब का शिकार है, तो तजर्बा करने में क्या नुकसान है। मेरे गले में जो पीरो मुर्शिद का अता करदा हीकल है वो मेरी असमत और आबरू का मुहाफ़िज़ है और शाम को इसके बल से बाहर निकाल कर सर कुचल में मज़ा आ जाएगा। और फिर वह मुतमिन हो गई और जैक मार्ले के साथ ज़रूर तावन करेगी। ज़ियाफ़त के दौरान कोई ख़ास बात नहीं हुई और कसरे जमाली के पुरसकून माहौल में पता भी ना चला कि बादल घिर आए हैं और रात तारीकी में डूबती चली जा रही थी। बिजली की मुसलसल चमक तूफ़ान का पता दे रही थी और फिर देखते ही देखते तूफ़ानी झक्कड़ शुरू हो गए।
चमक और गर्ज से महल गूंजने लगा और अकरम कमाल और कुदसिया ने रुखसत तलब की, और जब अपनी गाड़ी में बैठे तो कार ने स्टार्ट होने से साफ इनकार कर दिया और फरक ने अपनी गाड़ी की पेशकश करते हुए दबी जुबान से कहा, मुझे अफसोस है अकरम साहब कि आप लोगों को बड़ी जहमत हुई और तूफान तेज़ी के साथ शिद्दत अख्तियार कर रहा है और ऐसे मौसम में कार का सफ़र खतरे से खाली नहीं। फिर भी आप मिस्र हैं तो मेरी गाड़ी हाजिर है। बेटी ने बाप की तरफ देखा और बाप ने बेटी की तरफ, और फिर दोनों खामोश होकर फ़र्क के साथ ड्राइंग रूम में वापस आ गए। तूफ़ान ज़रा सा थम जाए तो मैं खुद आप लोगों को क़याम गाह तक पहुंचा दूंगा, वरना चश्मे मारोशन दिले माशाद। आप शौक़ से आराम करें और कसरे जमाल के लिए ये बहुत बड़ी सआदत होगी। थोड़ी देर तक ये लोग ड्राइंग रूम में बैठे रहे, मगर ये तूफ़ान तो शैतानी चक्कर था और बिला आसानी से कब टलने वाली थी। जब घड़ी ने 2 बजाए तो अकरम कमाल बादल अखवासा उठे और साथ ही कुदसिया भी। फ़र्क जमाल उनकी रहनुमाई करता हुआ उन्हें ख्वाबगाह तक पहुंचा गया और एक बेडरूम में सिर्फ एक ही बेड था, इसलिए अकरम कमाल की यह ख्वाहिश कि बाप बेटी एक ही ख्वाबगाह में आराम करें पूरी ना हो सकी। रात के 3 बज रहे थे और फ़र्क की आंखों से नींद कोसों दूर थी। कुदसिया का मासूम हुस्न शबाब उसकी आंखों में गर्दिश कर रहा था और उसका दिल उसके पहलू में मचल रहा था कि काश ये आखिरी तोहफा शैतान के पंजा सितम से महफूज हो जाता। वो दबे पांव अपने ख्वाबगाह से निकला और अकमर कमाल तो बेखबर सो रहे थे, मगर पहलू की ख्वाबगाह में मध्यम रोशनी हो रही थी। तो शहजादी जाग रही है और हमारी तरह वो भी बेचैन है, उसने सोचा और बेखौफो खतर दस्तक दी और दूसरी दस्तक पर दरवाज़ा खुल गया और कुदसिया अपनी पूरी रानाइयों के साथ खड़ी पलकें झिपका रही थी। आप और वो आगे कुछ न बोल सकी, इसलिए कि फ़र्क ने अंदर दाखिल होकर उसे अपनी आगोश में ले लिया और गुलाब की नरम और नाजुक पंखड़ियों पर मोहरे हवस सबत हो गई। इस गुस्ताखी के लिए माफ़ी का तलबगार हूँ और इस दिले बेताब की सारी खता थी, मैं न था। उसने घुटने टेकर कुदसिया का दामन पकड़ लिया और शहजादी पुरसकून थी। क्या तुम्हें मालूम है फ़रोख कि मेरी होंठों को आज तुमने पहली बार गुनहगार किया है? मुझे मालूम है शहजादी साहबा, और जानते हो कि इसकी सज़ा क्या है। सब जानकर भी कुछ नहीं जानता, और मोहब्बत अगर जुर्म है तो शहजादी के हाथों कत्ल हो जाना भी मंजूर है। शहजादी ने फ़र्क के हाथ को पकड़ कर उठाया और बड़े वक़ार के साथ उसको लिए हुए मसहरी पर बैठ गई और फ़र्क उसके कदमों में ही बैठा रहा। उसकी सज़ा दायमी मोहब्बत के अहदों पे माँ के सवार कुछ नहीं थी। फ़र्क का दिल ये सुनकर बाग बाग हो गया और वह खड़ा हुआ और सीने पर हाथ रख कर झुका और बोला, दिलो जान से मंजूर है मेरी हसीन शहजादी, मगर उसके लिए आपको मेरे साथ तनो तनहा कोहे इब्लीस की पहली चोटी तक चलने की जहमत गवारा करनी पड़ेगी, जहां एक कदीम मोहब्बत में हम दोनों ये मुकद्दस रस्म अदा करेंगे। और मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर क्या? शाम ढलने में नेशनल पार्क में शहजादी का इंतज़ार करूंगा। अच्छा प्यारे शहजादे, शब बखैर। शब बखैर। और फ़र्क मसरत से झूमता हुआ अपनी ख्वाबगाह में आ गया। दिन के वक्फे में अकरम कमाल, कुदसिया और जैक मार्ले में रब्ता कायम हो गया और शाम से पहले ही जैक मार्ले की क़यादत में एक मसला दस्ते ने दारुल इब्लीस के गिर्द घेरा डाल दिया और अकरम कमाल भी जैक के हमरा थे। सरे शाम कुदसिया और फ़र्क की नेशनल पार्क में मुलाकात हुई और दोनों फ़र्क की कार में रवाना हो गए। दामने कोह कुछ ज़्यादा दूर ना था और शाम ढलने वो कोह की बुलंदियों पर पहुँच कर रुक चुके थे और शहजादी कोहे पैमाई से नाआशनाई की वजह से थकी जा रही थी, लेकिन अज़्म इस्तक़लाल की यह हसीन देवी सरापा जुराय साबित हो रही थी। आज शैतानी तूफ़ान भी खामोश था, वरना इस नाज़ुक अंदाम हसीना के लिए चोटी सर करना दूभर हो जाता। आखिर वो मंजिल मकसूद पर पहुंचकर मबद में दाखिल हो गए, मगर फ़र्क जमाल पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा जब उसने देखा कि शैतानी मुजस्मे ने गर्म जोशी का कोई इजहार नहीं किया और वह एक बुत की तरह साकत और खामोश रहा। तो ये रोशनियों का धमाका हुआ और ना ही इस बुत की आंखों से चिंगारियां निकलकर उस परी जमाल कमारी को बेहोश कर सकी। बस एक पुरअसरार खामोशी का रार था और वह दोनों हैरत से शैतानी मुजस्मे को तक रहे थे। आज फ़र्क के जमाल के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उसने बुत के कदमों में घुटने टेक दिए। ए अजीम ताकत, आज मैं तेरी भेंट लिए आखिरी तोहफा पेश करने आया हूँ और इसको कबूल कर। और फिर भी बुत में कोई हरकत ना हुई। अलबत्ता एक बेहानक कहके से माबद का गंबद गूंज उठा और फिर एक गर्ददार आवाज़ से फिजा थर्रा गई। अहमक इंसान, तेरे कुछ तोहफे तो ऐन शरात के मुताबिक थे और उन्हें मैंने कबूल करके तेरी ताकतों में 6 गुना इजाफा कर दिया, मगर आज तू किसको लाया है? इससे पूछ के इसके दिल के किसी गोशे में तेरी मोहब्बत जागजी है, और इससे पूछ के ये दिल ही दिल में किसको याद कर रही है, और इससे पूछ के उसने अपने दाहिने बाजू पर क्या बांध रखा है। अगर तो उसके मलकूती हुस्न जमाल में गिरफ्तार होकर
یہ نہ بھول جاتا کہ یہ تیری موت کا فرشتہ بھی بن سکتی ہے، تو اپنی اس آخری مہم میں چھلانگ لگاتے وقت اپنے ہوش و حواس نہ کھو بیٹھتا، اپنی دونوں آنکھیں کھلی رکھتا، اور سب سے پہلے تو نے اپنے نصف سے زیادہ طاقت جیکولین کے ساتھ ضائع کر دی، اور جیکولین ہی تیری تباہی کا باعث بنی۔ سرکاری سراغ رساں جو تیری گرد بھی نہیں پا سکتا تھا، اسی سراغ رساں نے دونوں باپ بیٹی کا تعاون حاصل کیا۔ اور سن اے احمق آدم آزاد، یہ مبت اسی سراغ رساں اور اکمر کمال کی قیادت میں مسلح دستوں سے گھیرا جا چکا ہے۔ اور سن اے آدم کی احمق اولاد، یہ حسینہ خدا کے اس دین کی سچی پرستار ہے، اور یہ تیرے حسن و لازوال کی دلکشیوں سے متاثر ضرور ہوئی، اور اگر تو آنکھیں بند نہ کر لیتا تو تیرا یہ تحفہ سب سے عظیم تحفہ ثابت ہوتا۔ سن اے کج ذہن انسان، آج تو اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں گرفتار ہو چکا ہے، مگر میں تجھے ایک آخری موقع ضرور دوں گا، اور اگر ہمت ہے تو قبل اس کے کہ میں تیری نیست و نپاک روح پر قبضہ کر لوں، اس معزز حسینہ کی عصمت کا دامن اسی معبد میں چاک کر دے۔ اور یکا یک فرخ جمال کی آنکھیں شعلے برسانے لگی۔ اس نے پہلے تو مسکراتی قدسیہ کو قہر اور نگاہوں سے گورا، اور پھر اس پر چھلانگ لگا دی، لیکن قدسیہ بھی غافل نہ تھی، اور اس نے اس کے سینے پر ایک بھرپور لات ماری اور کترا کر دور چھا کھڑی ہوئی۔ فرق ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح گرایا، اور دوسری چھلانگ میں قدسیہ کو دھکیلتا ہوا شیطانی مجسمے کے قدموں میں تلے لے آیا، لیکن جو ہی اس نے قدسیہ کے بازو پکڑا، اس کو ایک جھٹکا لگا، اور وہ چاروں شانے چت ڈھیر ہو گیا، اور اتنی دیر میں جیک مارلے اور اکرم کمال ماں مسلح دستوں کے مبت کے اندر گھستے چلے آئے، اور سب نے مل کر بڑی مشکل سے اس ناپاک وجود پر قابو پا لیا۔ ابھی فرق کو ہتھ کڑی ڈالی ہی جا رہی تھی کہ روشنی کے ایک تیز دھماکے سے مبد نور بن گیا۔ بت کی آنکھوں سے چنگاریاں برسنے لگی، اور شعلوں کی بوچھار فرق کو جلانے لگی۔ مسلح فوجی گھبرا کر الگ ہو گئے، اور سب نے دیکھا کہ بجائے فہاں فرق جمال کے حسین و خوبصورت جسم کے ایک بوڑھے کا بھیانک ڈھانچہ پڑا ہوا تھا، اور جس کا چہرہ بیڑیے سے مشابہ تھا۔ شیطانی کہکے کے ساتھ ایک گجدار آواز سے معبد کا گنبد لرز گیا، اور یہ لاش 70 سالہ جیمس ویگز کی ہے، جو خود کشی کے ارادے سے یہاں آیا، اور پھر اپنی روح کے تبادلے میں لازوال حسن و شباب، لافانی طاقت اور بے پناہ دولت کا مالک بن بیٹھا۔ اسے 7 پری جمال کنواریوں کو اپنے دام محبت میں گرفتار کر کے میری بھین چڑھانا تھا، مگر آخری مہم میں یہ حد سے زیادہ جذباتی ہو کر جیک مارلے کی سازش کا شکار ہو گیا۔ پھر ایک طویل سناٹا چھا گیا، اور ایک پر اسرار خاموشی۔ شہزادی قدسیہ ناز آفری ویگز کی لاش کے سرہانے 2 زانو بیٹھ گئی، اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور سب آہستہ آہستہ کانپ رہے تھے۔ اے رحیم و کریم آقا، اے قادر مطلق، اے بد نصیب انسانوں کی روح کو شیطان لعین کے نحس سے قبضے سے آزاد کر دے، اور یہ انسانی حرص و حوث کا شکار ہو کر تجھے فراموش کر بیٹھا ہے۔ اے صاحب و جلال و جمال، میں تجھے ان 6 معصوم بہنوں کا واسطہ دیتی ہوں جنہیں اس حریص انسان علی نے ملعون کی بھین چڑھا دیا۔ ان مقدس روحوں کو بھی میرے مالک آزاد کر کے اپنی پناہ میں لے لے۔ اور پھر قدسیہ کے لبوں سے سورہ یاسین کے پھول جڑنے لگے۔ اکرم کمال اپنی محبوب بیٹی کے پہلو میں مؤدب بیٹھ گئے، اور جیک مارلے ماں مسلح دستے کے اپنی ٹوپیاں اتار کر اس مجسمے نور سراپا حسن و جمال کی عقیدت بڑی نظروں سے دیکھنے لگے، اور جس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر بوڑھے ویگز کے چہرے کو تر کر رہے تھے۔ پھر ایک حیرت انگیز نظارہ دیکھنے میں آیا۔ شیطانی مجسمے نے ایک دل دوز چیخ ماری، اور چشمے زون میں محیط بت ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب ویگز کا بھیڑیا نما چہرہ انسانی روپ میں دھار چکا تھا، اور گنبد کے آخری سر پر 6 حسین روحوں کا آسمانی نغمہ گونج رہا تھا، اور ایک قطار میں سفید حریری لباس میں ملبوس یہ روحیں اپنے تشکر امید نگاہیں قدسیہ پر ڈالتے ہوئے فضا میں تحلیل ہو گئیں، اور کوہ ایپلس کی حسین وادیاں ان روحوں کے ملکوتی نغموں سے گونج اٹھی جنہیں شیطان لعین نے خود کشی کی ترغیب دی تھی۔ اور آخر کار شیطان کو شکست ہوئی، اور اس کا بت پاش پاش ہو گیا، اس کا گمن ٹوٹ گیا، اور وہ ناقابل شکست سے اسے منہ کی کھانی پڑی۔ آنا زبیدہ کی پر اسرار آواز ابھری، اور رجنی چونک پڑی۔ وہ اس ہولناک داستان میں اس طرح کھو گئی تھی کہ اسے دنیا جہان کی خبر نہ رہی تھی۔ اس نے کھوئی نظروں سے آنا زبیدہ کو دیکھا تو پر اسرار عورت کے چہرے پر ایک پر اسرار مسکراہٹ پھیل گئی، اور اس وقت رجنی کو کسی کے الفاظ یاد آ گئے۔ وہ تو خود ایک روح ہے، اور وہ زندہ کہاں ہے؟ کیا واقعی آنا ایک روح ہے اور ایک پر اسرار روح؟ اور اسی وقت آنا زبیدہ کی آواز ابھری، ہم معمولی سے لوگ ہیں، اور وہ عدل سے ہے اور اب تک رہے گا، اور وہ علم الملکوت غم و آگاہی کا سمندر، اور ہم کچھ بھی نہیں، اور اس کے باوجود معبود کریمی نے ہمیں اس پر فوقیت دی، اور ہم اسے شکست دے سکتے ہیں۔
तो क्यों ना सितारा हम उसके खिलाफ एक महाज कायम कर लें और हम औकात बार जिसकी मदद कर सकते हैं। क्या ख्याल है? बेशक हमें ऐसा करना चाहिए। मैं ऐसे हालात में तुम्हें अपना शरीक कार रखूँगी। और उन्हें बहुत जल्द इसका मौका मिल गया और उस लड़की का नाम आलिया था और उसे ईमान अली साथ लाया था। ये बेचारी एक मुश्किल का शिकार थी और आपसे मदद चाहती है। आना ज़बादा, बैठ जाओ, क्या बात है? मैं बहुत परेशान हूँ बुजुर्ग खातून, ऐसे अनोखे हालात में फंस गई हूँ। और लड़की गहरी गहरी सांसें लेने लगी। ईमान अली ने कहा कि वाक़यात कुछ जुर्म की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके पसे मंज़र में उस लाइन का हाथ है जिसे शैतान कहा जाता है और वही बुराई का रूह रमा है। क्या तुम मुझे अपने बारे में तफसील नहीं बताओगी? मुझे आपकी मदद दरकार है। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम मुझे अपने बारे में बताओ। लड़की सोच में डूब गई और फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं इस वक्त से अपने बारे में बताऊँगी जब किसी हादसे ने मुझसे याददाश्त छीन ली। मैं ना जाने कहाँ थी और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, और बस जिस वक्त आँख खुली तो जहन पर गनूदगी सी तारी थी। गर्मी की शिद्दत और सर के पिछले हिस्से में उठने वाली दर्द की लहरों के सिवा कोई एहसास नहीं था और मैं बेहिस्सो हरकत लेटी बेमकसद सामने घूरे जा रही थी और मेरी नज़रों का कोई मरकज़ नहीं था। बस एक धुन थी और जिसने सबको अपनी लपेट में ले रखा था और कोई चीज़ वाज़ा ना थी। मिली जुली आवाज़ों की बिनबुराहट मेरी समाज से टकराई। ऐसे लगता था जैसे ये आवाज़ें किसी कुएं की गहराई से आ रही हों। एक मुतरन्नम आवाज़ इन सब आवाज़ों पर गालिब आने की कोशिश कर रही थी और मैंने भी अपनी तमाम तर तवज्जो उसी एक आवाज़ पर मरकूज़ कर दी और रफ्ता रफ्ता ये आवाज़ वाता होते चली गई। अब तुम होश में आ रही हो और चंद सेकंड उसी तरह बेहसो हरकत लेटी रहो। मेरे साथी तुम्हारे खून का नमूना हासिल करना चाहती हैं। और उसी लम्हे मुझे अपने दाएं बाजू पर नाजुक सी उंगलियों के लम्स का एहसास हुआ और मैं अभी उंगलियों के इस लम्स के बारे में सोच ही रही थी कि मेरे मुंह से बेअख्तियार सिसकारी से निकल गई और बाजू में प्यूसत होने वाली सुई की चुभन खासी तकलीफदा थी। बस चंद सेकंड और ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी मिस आलिया। टेस्ट करने के लिए खून के चंद कतरे ही काफ़ी हैं। सुई बाजू से निकल गई। अब दर्द का हल्का सा एहसास बाकी रह गया, लेकिन एक हैरत अंगेज़ बात यह हुई कि खून के चंद कतरे निकलने से मेरे सर का दर्द कुछ हल्का हो गया और मैं अपने आप को बड़ी हद तक बेहतर महसूस करने लगी। मैंने बड़ी एहतियात और आहिस्तगी से सर को दाएं तरफ घुमाया और दरमियाने कद की एक दुबली पतली सी औरत मेरे सामने खड़ी थी। आंखों पर नाजुक से स्टील फ्रेम की ऐनक, कानों में हल्के से अवीज़े और नाक में छोटी सी नथनी जिसमें नन्हा सा नग जगमगा रहा था और बड़ी बड़ी शरबती आंखें और कमर तक झूलते हुए रेशमी स्याह बाल। उसने सफ़ेद रंग की सूती साड़ी पहन रखी थी और मुझे अपनी तरफ मतवज्जा पाकर उसके पतले पतले होंठों पर मुस्कुराहट खेल गई। उसके इस तरह मुस्कुराने से चेहरे पर बारीक सी लकीरें नमूदार हो गई और जिससे वो अपनी उम्र से कुछ बड़ी नजर आने लगी, लेकिन चेहरे की ये बारीक सी लकीरें भी उसके हुस्न को मुतासर न कर सकीं और इस तरह गर्दन घुमाने से मेरे सर के पिछले हिस्से में एक बार फिर दर्द की हल्की हल्की टीसें उठने लगीं। लेकिन मैं इस मलाहत अमीर चेहरे को देखती रही। क्या तुम डॉक्टर हो? और मैंने मुर्तश लहजे में पूछा। हाँ, उसकी गजाली आंखों में चमक सी उभर आई। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, लेकिन इस वक्त तुम पर बेहोशी तारी हो गई थी और मैं तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद हूँ। तुम जब से यहाँ आई हो थोड़ी देर को होश में आने के बाद फिर बेहोश हो जाती हो। बहरहाल अब मैं तुम्हारी हालत से कदरे मुतमिन हूँ। कब से यहाँ आई हूँ? मैं बड़बड़ाई और मेरी आंखों में उलझन पैदा हो गई। मैं सोचने लगी कि यह कौन सी जगह है और मैं यहाँ कब और क्यों आई थी और मुझे क्या हुआ है। ज़हन पर जोर देने का से सर का दर्द शिद्दत इख्तियार कर गया और दिमाग में चिंगारियाँ सी फूटने लगी और मैंने बेबसी से सर को झटक दिया। मुझे कुछ याद नहीं। परेशान होने की कोई बात नहीं, फिलहाल दिमाग पर बोझ ना डालो और ये कैफियत वक्ती है। और वैसे तुम खुशकिस्मत हो कि जब तुम पर हमला किया गया तो नरीन चंदर रात पहुंच रही थी और जलते हुए सहरा में 200 मील तक कोई ऐसी जगह नहीं जहां किसी किस्म की तबी अमदाद मुहैया हो सके। हमारा ये अस्पताल अगरचे बहुत मुख्तसर सा है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ मरीजों को हर मुमकिन सहूलतें हासिल हों। मैं यहाँ की वह डॉक्टर हूँ और घबराओ नहीं, यहाँ तुम्हारी मुनासिब देखभाल होगी और सर में दर्द की तकलीफ भी जल्द रफा हो जाएगी। लेकिन मैं मतवश निगाहों से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन मुझे कुछ मालूम नहीं कि मैं यहाँ कैसे आई थी और ये कौन सी जगह है। क्या तुम्हें वो हादसा याद नहीं
डॉक्टर के होंठों की मुस्कुराहट गायब हो गई। और तुम्हें तो इतना तो याद होगा कि तुम ट्रेन में सफ़र कर रही थी और किसी ने तुम पर हमला कर दिया। ट्रेन में सफ़र, हमला, और मुझे अपने पेट में गिरा सी पड़ती महसूस हुई। नहीं डॉक्टर, मुझे याद नहीं पड़ता और कुछ भी नहीं याद, और मुझे तो अपना नाम भी याद नहीं कि मैं कौन हूँ। तुम्हारा नाम आलिया है, आलिया खातून। डॉक्टर आगे बढ़कर मेरा सर और गर्दन पर बंधी हुई पट्टियों का जायजा लेने लगी और बड़ी शिद्दत की गर्मी थी। हर चीज़ दमक रही थी। ये लंबा चौड़ा कमरा तनूर की तरह तप रहा था और मेरे सर में एक बार फिर दर्द की शदीद लहरें उठने लगीं। मेरे दांत खुद ब खुद भींच गए और मैंने तकलीफ से निजात के एहसास से आंखें बंद कर लीं। मेरी गर्दन और सर का मुआयना करने के बाद डॉक्टर ने पट्टियां दोबारा बांध दी और मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए नरम लहजे में बोली, अब तुम आराम करो और जहन पर ज़्यादा बोझ ना डालो। इस वक्त कुछ देर की नींद तुम्हारे लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। लेकिन मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है, और क्या मेरी याददाश्त किसी नामालूम खौफ के तहत मैं जुमला पूरा न कर सकी। तुम हिंदुस्तान में हो और चंदर नामी ये जगह छोटा सा कस्बा है, राजस्थान के सहरा के किनारे पर वाक़या। तुम्हारा नाम आलिया खातून है और अब तुम आराम से सो जाओ। डॉक्टरों के होंठों पर एक बारीक सी मुस्कुराहट आ गई और उसकी नज़रें मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। ना जानो उन निगाहों में कैसा सैर था कि मेरी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगीं। दोबारा जब मेरी आंख खुली तो माहौल नीम तारीख था और वार्ड के आखिरी सिरे पर छत से लटका हुआ मध्यम रोशनी का बल्ब जल रहा था। उस बल्ब की बीमार रोशनी इतने बड़े कमरे की तारीकी दूर करने के लिए कतई नाकाफी थी और मैं उदास सी नज़रों से माहौल का जायजा लेते हुए ये याद करने की कोशिश कर रही थी कि मैं कौन हूँ और राजस्थान के दूर दराज कस्बे चंदरराट के अस्पताल में किस तरह पहुँची। डॉक्टर ने बताया था कि ट्रेन में सफ़र के दौरान किसी ने मुझ पर हमला कर दिया और जिससे मेरे सर और गर्दन पर चोटें लगी थी। लेकिन मैं ट्रेन पर कहाँ जा रही थी और मुझ पर हमला किसने और क्यों किया, और मेरा दिमाग फिर धुंध की छाई हुई थी। तेज सनसनाहट के बाद सर में एक बार फिर दर्द होने लगा और मैं सर झटक कर रह गई और ठीक उसी लम्हे कराहने की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। मैंने आवाज़ की सिमत देखा और कराहों की ये आवाज़ें स्क्रीन के अकब से उभर रही थी और जो मेरे और साथ वाले बेड के दरमियान ऐस्तादा थी। ये कौन है और क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? मैंने आहिस्तगी से अपने बेड से उतरते हुए कहा और जवाब में कराहों के साथ अब सिसकियों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी, जैसे मेरे हमदर्दाना अल्फाज उस पर बहुत ज़्यादा असर अंदाज हुए हों। मैं छोटे छोटे कदम उठाती हुई स्क्रीन की दूसरी जगह पहुंच गई और बेड पर एक बूढ़ा आदमी बेहिस्सो हरकत पड़ा था और एक नौजवान लड़की पलंग की पट्टी से लगी बैठी सिसकियां भर रही थी। बूढ़े आदमी के जिस्म पर एक बसीदा सा चुगा था और उस चुगे का रंग अगरचा सफ़ेद था, मगर वो इस कदर मैला चक हो चुका था कि रंगत की शिनाख्त करना मुश्किल हो गया। और बूढ़े के सर के बाल चांदी के तारों की तरह सफ़ेद थे। उसका हाथ सीने पर था और दूसरा लड़की के हाथों में, जिसे वह अपनी गिरफ्त में लिए दारों को तार रो रही थी। लड़की के स्याह लंबे बाल पुष्ट पर बिखरे हुए थे और आहट पाकर उसने मेरी तरफ देखा और रुखसारों पर आंसुओं की धारें बह गईं। मुझे देखकर उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें कुछ और भी भीग गईं। बाबा मर गया, और वह सिसकती बढ़ते हुए बोली, और बाबा मुझे छोड़ गया। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, बाबा मर गया। मैं हमदर्दाना नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी और वह बिल्कुल नौ उम्र थी और अभी जिस्मानी की दहलीज पर कदम रखा था। जिस्म पर जो लिबास नज़र आ रहा था वो किसी ज़माने में बहुत अच्छा रहा होगा, मगर अब तो कसरत इस्तेमाल से उसकी रंगत उड़ चुकी थी और कहीं कहीं से बुखिए उधड़े हुए नज़र आ रहे थे। उसे इसी तरह बिलक बिलक कर रोते देखकर मेरा दिल भर आया और उस बूढ़े से उसका क्या रिश्ता था ये मुझे मालूम नहीं था, मगर ये वाकई अज़ियत वो बात थी कि वो हमेशा के लिए उसके मुंह मोड़ चुका था। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी कि वह दुनिया में अकेली रह गई थी और उसके और रिश्तेदार भी तो होंगे, बहन, भाई, माँ या कोई और अजीज। हौसला रखो बहन, और मैंने हमदर्दाना लहजे में उसको मुखातब करते हुए कहा, और ये सदमा वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है, मगर इस्तकलाल का दामन ना छोड़ो और मुझे अपना समझो और बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ और तुम्हारे अजीज़ों को इतला दे दी जाए। मेरे अजीज़, और लड़की ने अश्कबार निगाहों से मेरी तरफ देखा। कोई भी नहीं बचा और जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने वाले इस काफिले को तय कर दिया गया, जिसमें मेरे अजीज रिश्तेदार भी शामिल थे। हम इस काफिले तक पहुंच सके थे। हमें गांव के चंद नेक और जिम्मेदार आदमियों ने अपनी पनाह में ले लिया। हंसियों ने बहुत अरसे तक हमें छुपाए रखा, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊं, इस दुनिया में मेरा कौन है।
اس کا نام حسینہ تھا اور وہ کچھ دیر تک ہچکیاں بڑھتی رہی اور پھر میرے پوچھنے پر بتانے لگی کہ وہ اس گاؤں کی رہنے والی ہے اور اس کا باپ مسلمان تھا جس نے ایک ہندو عورت سے شادی کر لی اور باپ کے گاؤں میں کریانے کی دکان تھی اور نبینا دادا گاؤں کی چھوٹی سی مسجد کا پیشے امام تھا۔ فسادات سے پہلے ہندو مسلم شیر و شکر تھے، لیکن فساد کی آگ بھڑکتے ہی سارے رشتے ناطے ٹوٹ گئے اور جو دوستی اور بھائی چارے کا دم پڑتے تھے جان کے در پہ ہو گئے۔ ہر گاؤں اور دیہات میں مسلمانوں کو چن چن کر قتل کیا جا رہا تھا اور ان کی املاک کو نظر آتش کیا جاتا رہا۔ حسینہ کا باپ بھی اپنے چند جگری دوستوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا اور اس کی ماں نے مسلمانوں کے ایک مختصر سے قافلے کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی ہندوؤں کے انتقام سے نہ بچ سکی۔ اسے اس کے ماموں زاد نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حسینہ اور اس کے نابینا دادا کو چند نیک دل آدمی نے بچا لیا اور دلوں میں نفرت کی بھڑکتی ہوئی آگ ذرا سرد ہوئی تو صورتحال بھی کسی حد تک بدل گئی۔ حسینہ اور اس کے اندھے دادا کو اب کوئی خطرہ نہیں تھا اور گاؤں کی مسجد ویران ہو گئی، کوئی نمازی نہ رہا، تو مسجد کیسے آباد ہوتی؟ اب حسینہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی اور پاکستان میں بھی اس کا کوئی عزیز نہ تھا جہاں اسے پناہ ملتی۔ واقعی یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور ویسے میرے خیال میں تمہارا پاکستان چلے جانا ہی مناسب ہوگا، وہاں کسی شریف نوجوان سے شادی کر کے گھر بسا لینا۔ اور میں نے اس کی خاموش ہونے پر کہا، شادی؟ اس نے عجیب سی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ کوئی پاکستانی نوجوان کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا جو عادی ہندو ہو، اور یہاں چند راٹ میں بھی کوئی ہندو ایسی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا جس کا باپ ایک مسلمان تھا۔ ارے مس عالیہ، اپنے بیڈ پر جائیے۔ اور ڈاکٹر کی بات سن کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ قریب پہنچ کر اس نے حسینہ کی اشکبار آنکھوں کی طرف دیکھا اور پھر اس کی نظریں حسینہ کے دادا کی طرف اٹھ گئیں جو دنیا کے تمام جھنجھٹوں سے آزاد ہو چکا تھا، اور وہ جلدی سے بیڈ پر جھک گئی۔ نبض ٹٹول کر بوڑھے کے جسم میں زندگی کی کوئی رمق تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن بوڑھی رگوں میں خون کی گردش تھم چکی تھی۔ اس نے سیدھے ہو کر دروازے پر کھڑے ہوئے اردلی کو کچھ ہدایت دیں اور بند ہندی زبان میں حسینہ کو تسلی دینے لگی۔ ساتھ ہی وہ دھیرے دھیرے اس کا کندھا بھی تھپتھپا رہی تھی، اور پھر اس نے جھک کر بوڑھے کی لاش پر چادر ڈال دی اور میری طرف رخ کر کے بولی، مس عالیہ پلیز چند گھنٹوں تک اپنے بستر سے نہ ہلیں اور آپ کو آرام کی اشد ضرورت ہے۔ میں اسے روتے ہوئے دیکھ کر یہاں آ گئی تھی اور میں نے حسینہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، کس کی آہیں سنو گی؟ اور ڈاکٹر کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی، اور تمہاری یادداشت کا کیا حال ہے؟ ختم ہو چکی۔ اور میں نے کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا، کبھی کبھی ذہنی طور پر مجھے دھچکا سا لگتا ہے، لیکن کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ اب تم ہی مشورہ دو ڈاکٹر کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور کیا پاکستانی قونصل خانے سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کروں؟ چندراٹ ایک غیر معروف اور چھوٹا سا قصبہ تھا اور یہاں کسی ملک کا کوئی سفارتی نمائندہ نہیں۔ اگر تم چاہو تو میں وہاں اطلاع بھجوا سکتی ہوں، لیکن اس وقت میرا مشورہ ہے کہ تم آرام کرو، اپنے سامان اور کاغذات کا جائزہ لو۔ ممکن ہے کہ کوئی چیز نظر آ جائے جس سے تمہاری یادداشت اود کر آئے، اور میں صبح تمہیں مسٹر بہادر سے ملواؤں گی۔ اور ڈاکٹر نے جواب دیا، کس لیے؟ میں نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مسٹر بہادر، ان دنوں چندراٹ میں صرف وہی ایک مسلمان شخص ہے اور اس سے مل کر تمہیں یقیناً خوشی ہوگی۔ اور ڈاکٹر مینی خیز انداز میں مسکرائی۔ اسی وقت درمیانے قد کا ایک بھاری بھرکم آدمی ٹرے اٹھائے ہوئے میز کے قریب پہنچ گیا، اور اس نے تنگ سی پتلون پر ڈھیلا سا کوٹ پہن رکھا تھا، سر پر دھاری دار کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور اس نے ٹرے میرے بستر پر رکھ دی جس میں ایک پیالے میں گدلا سا شوربہ نام کی چینی کی پلیٹ میں 2 چپاتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے ٹرے اٹھا کر سامنے رکھ لی اور شوربے میں نوالے بھگو کر کھانے لگی۔ ماحول میں ایک عجیب سی پر اسراریت تھی اور اجنبی لوگوں میں گھری ہوئی میں خود اپنے آپ سے اجنبی تھی۔ کھانا ختم کرنے کے بعد میں ایک بار پھر اپنے بارے میں سوچنے لگی اور ذہن میں سنسناہٹ سی ہو رہی تھی جو رفتہ رفتہ گڑگڑاہٹ میں بدلتی چلی گئی، اور اچانک ایک جھٹکا سا لگا جیسے کچھ یاد آ رہا ہو، لیکن پھر ایک دم تاریکی چھا گئی اور تیز رفتار ٹرین کے پہیوں کی گڑگڑاہٹ، حملہ آور تاریکی اور کوئی بات ذہن کے تاریک گوشوں سے ابھر کر سامنے آنا چاہتی تھی، لیکن ہر مرتبہ دماغ میں سوئیوں کی چبھن سی ہونے لگتی۔ میں نے پلنگ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں اور دماغ میں کبھی بجلی کے کندے سے لپکنے لگتے اور کبھی تاریکی چھا جاتی، اور پھر نہ جانے کب میری آنکھ کھل لگ گئی۔ صبح میں سوٹ کیس کھولے اپنے سامان کا جائزہ لینے لگی اور حسینہ ناشتے کی ٹرے لیے پہنچ گئی۔
اس کے چہرے پر غم اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس نے ٹرے اسٹول پر رکھی اور پلنگ کی پٹی پر بیٹھتے ہوئے بولی، آج صبح سویرے میرے دادا کو پرانے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اگرچہ ہسپتال میں میرے رہنے کا کوئی جواب نہیں، لیکن ڈاکٹر بملا نے مجھے مریضوں کی دیکھ بھال اور اوپر کے کاموں کے لیے رکھ لیا ہے۔ چلو اچھا ہے، تمہارا دل لگا رہے گا۔ اور میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر میں نہ جانے کیوں افسردہ سی ہو رہی تھی۔ میں ذرا دوسرے مریضوں کو ناشتہ وغیرہ دے کر آؤں اور پھر آپ کے پاس آ کر بیٹھوں گی۔ اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو بلا تکلف کہہ ڈالیے۔ اور حسینہ کہتی ہوئی دوسری طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ٹرے اپنے سامنے رکھی اور ناشتہ کرنے لگی، جو دلیے اور چائے پر مشتمل تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں ایک بار پھر اپنے سامان کا جائزہ لینے لگی۔ نہ جانے مجھے یہ احساس کیوں ہو رہا تھا کہ اس سامان میں ایسی کوئی چیز کم ہے، اور میں ذہن پر زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے جس کی میں کمی محسوس کر رہی تھی، لیکن بڑی کوشش کے باوجود میں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ میں نے سوٹ کیس میں برآمد ہونے والا آئینہ اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیا اور اس میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ چہرہ ستا ہوا سا تھا اور آنکھوں میں سرخی کے ڈورے تھے اور کمر تک پہنچتے ہوئے سیاہ بال الجھے ہوئے تھے۔ دائیں کپڑی پر بڑا سا سیاہ دھبا تھا اور چہرے پر بھی ہلکی ہلکی خراشیں تھی۔ اسی وقت اگرچہ کسی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا، لیکن یہ سیاہ دھبا اور خراشیں بڑی بدنما سی لگ رہی تھی اور میں نے آئینہ رکھ دیا۔ اس وقت میری نظریں کپڑوں سے برآمد ہونے والی ایک تصویر پر جم کر رہ گئیں۔ ایک جوان عورت کی تصویر تھی اور سلیقے سے بنے ہوئے بال، صحیح بے داغ اور دلکش چہرہ، ستاروں کی طرح چمکتی ہوئی آنکھیں، اور پرنٹ کی ساڑی میں اس کا حسن کچھ اور بھی نکھرا نکھرا سا لگ رہا تھا۔ اور یہ میری تصویر تھی، لیکن میں اس تصویر سے کتنی بدلی ہوئی تھی۔ اٹیچی کیس کی جیب سے ایک پاسپورٹ بھی مل گیا اور پاسپورٹ پر جس عورت کی تصویر تھی وہ دوسری تصویر سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، اور یہ بھی میری ہی تصویر تھی۔ اور میں پاسپورٹ کے اندراجات پڑھنے لگی۔ پاسپورٹ کے مطابق میرا نام عالیہ خاتون تھا، عمر 24 سال اور میں بیوہ تھی۔ اور بیوگی کے احساس سے میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا، لیکن پھر تاریکی چھا گئی اور میں سوچنے لگی کہ میرا شوہر کون تھا۔ پاسپورٹ میں اس کا نام ندیم عارف تھا، لیکن میری شادی کب ہوئی اور میرے شوہر کا انتقال کب اور کس طرح ہوا، لیکن کوئی بات یاد نہ آ سکی۔ میرا قد 5 فٹ 6 انچ، وزن 100 پاؤنڈ، بال سیاہ اور آنکھیں بھی سیاہ، اور اس پاسپورٹ کے مطابق میں پاکستانی شہری تھی اور سیلون، نیپال، برما اور سکم سے ہوتی ہوئی بھارت میں داخل ہوئی تھی۔ لیکن میں نہیں سمجھ سکی کہ میں اتنا طویل سفر کیوں کرتی رہی اور اس کا سفر کا مقصد کیا تھا۔ اور میں ہینڈ بیگ اٹھا کر اس میں رکھی ہوئی چیزوں کا جائزہ لینے لگی۔ ہینڈ بیگ میں میک اپ کی تمام ضروری چیزوں کے علاوہ تقریباً 2000 روپے کی مالیت کے لگ بھگ ہندوستانی کرنسی نوٹ بھی موجود تھے۔ بیگ میں اتنی بڑی رقم کی موجودگی میرے لیے الجھن کا باعث بن گئی، اور ڈاکٹر بملا کے بیان کے مطابق مجھ پر ٹرین میں حملہ کیا گیا۔ لیکن حملہ آور کا مقصد اگر مجھے لوٹنا تھا تو وہ رقم کیوں چھوڑ گیا؟ میرے لیے مزید الجھن کی بات یہ تھی کہ میں ٹرین میں کہاں جا رہی تھی، اور میں جتنا سوچتی اتنا ہی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ اور میں نے سر جھٹک کر کنگا اٹھا لیا اور بال سلجھانے لگی۔ اسی دوران حسینہ آ گئی اور اس نے مسکراتے ہوئے کنگا میرے ہاتھ سے لے لیا اور میرے بال سلجھانے لگی۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دراز قامت آدمی وارڈ میں داخل ہوا اور چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا، اور پھر نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا میرے بیڈ کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کا جسم صحت مند اور آنکھوں میں تجسس کی چمک تھی، اور بڑی بڑی مونچھیں اس کی شخصیت کو پروقار بنا رہی تھیں۔ وہ چند لمحے تجسس نگاہوں سے میرے سراپے کا جائزہ لیتا رہا اور پھر مدھم لہجے میں گویا ہوا کہ آپ ہی مس عالیہ ہیں؟ ہاں، اور آپ کی تعریف۔ میں نے الجھی ہوئی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، اور حسینہ کنگا میرے ہاتھ میں تھما کر وہاں سے کھسک گئی۔ شاید ہمیں بے تکلفی سے باتیں کرنے کا موقع دینا چاہتی تھی۔ میرا نام بہادر ہے، پاکستانی ہوں، اور گزشتہ 2 سال سے یہاں مقیم ہوں تاکہ پاکستان جانے والے مہاجرین کے املاک کی تفصیلی فہرست مرتب کر سکوں۔ ڈاکٹر بملا نے بتایا تھا کہ آپ کی یادداشت کھو چکی ہے، اور اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، ہاں کوئی ایسی بات ہے، اور میں نے مدھم لہجے میں جواب دیا کہ آپ کا ذہن مکمل طور پر تاریکی میں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی معمولی سی بات بھی یاد نہیں آتی کہ آپ پر ہونے والا حملہ یا وہ حملہ آور جس نے آپ کا سامان چھیننے کی کوشش کی تھی۔ اور بہادر نے میرے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے پوچھا، کچھ نہیں۔ میں نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ پاسپورٹ کے مطابق میں بیوہ ہوں، لیکن مجھے یہ بھی یاد نہیں کہ میرا شوہر کون تھا، کیسا تھا، اور اس کا انتقال کس طرح ہوا۔ مجھے افسوس ہے۔ اور بہادر نے اظہار تاسف کرتے ہوئے کہا، کچھ یاد کرنے کی کوشش کیجیے، کوئی غیر معمولی بات، کوئی مخصوص چہرہ،
चेहरा और मेरे ज़हन को एक खफीफ सा झटका लगा। हाँ, एक बूढ़ी औरत के झुर्रियों पड़े चेहरे के मध्यम से नकूश मेरे जहन में उभर रहे हैं, लेकिन और मैं एकदम खामोश हो गई और दिमाग पर जोर देकर याद करने की कोशिश करने लगी कि झुर्रियों भरे चेहरे से कौन सी याददाश्त याद वाबस्ता थी। अगर इस सिलसिले में कुछ याद आ जाए तो मुमकिन है कि मैं कुछ और भी सोचने में कामयाब हो सकूं, लेकिन मेरे दिमाग में चूंटियां सी रेंगने लगीं। तारीकी एक बार फिर मसलत होने लगी और रोशनी की जो नन्ही सी किरण फूटी थी वो जहन के गुप्त अंधेरे में गायब हो गई। बेबसी के एहसास से मेरी आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा और मैंने आंसू छुपाने के लिए मुंह फेर लिया। परेशान होने की जरूरत नहीं, उसने नरम लहजे में कहते हुए मेरे हाथ पर हाथ रख दिया, लेकिन फिर फौरन ही अपना हाथ खींच लिया। अक्सर ऐसा होता है कि किसी हादसे के बाद याददाश्त खत्म हो जाती है, लेकिन ऐसा वक्ती तौर पर होता है। मुमकिन है किसी और मामूली से हादसे से आपकी याददाश्त ऊद कर आए। और जवाब मैंने सिर्फ सर हिलाने पर ही इक्तफा किया। इस दौरान हसीना वापस आ गई और बहादुर ने मुस्कुराती हुई निगाह से उसकी तरफ देखा और फिर उसका कंधा थपथपाते हुए मध्यम लहजे में बोला, इस कस्बे में हसीना मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मुझे उसके दादा के इंतकाल का गहरा सदमा पहुंचा है, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत जल्द इस वाक़े को भूल जाएगी। मैंने अभी कोई जवाब नहीं दिया और बेड से उतरकर बांस की हिच्चियों से बनी हुई खिड़की के सामने खड़ी हो गई और बहादुर की तरफ देखे बगैर बोली, मिस्टर बहादुर, मुझे ये एहसास हो रहा है कि आप मेरे बारे में कुछ जानते हैं। प्लीज़ बताइए कि मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया था। तुम्हारे साथ पेश आने वाले इस अफसोसनाक हादसे का मुख्तसर हाल मुझे डॉक्टर बिमला ही ने मालूम हुआ है। उसके बयान के मुताबिक ट्रेन में सफ़र के दौरान कोई शख्स जो तुम्हारा हम सफ़र भी हो सकता है तुम्हें किसी बहाने कंपार्टमेंट से बाहर ले गया और इस दौरान उसका दूसरा साथी तुम्हारे कंपार्टमेंट में घुसकर तुम्हारे सामान की तलाशी लेता रहा। वो शख्स तुम्हें ज़्यादा देर तक बाहर न रोक सका और जब तुम कंपार्टमेंट में दाखिल हुए तो वह शख्स बदहवास हो गया और उसी बदहवासी में उसने तुम पर हमला कर दिया। ना सिर्फ तुम्हारा एक बैग ले भागा बल्कि तुम्हें याददाश्त से महरूम कर गया। मेरी दुआ है कि तुम्हारी याददाश्त लौट आए। और बहादुर ने कहा और मेरे किसी जवाब का इंतजार किए बगैर फिर किसी वक्त आने का कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दोबारा सामान की तलाशी के दौरान एक डायरी मेरे हाथ लग गई और ये मेरी ही डायरी थी और जिस पर जगह जगह याददाश्तें तहरीर थी, मगर ये सब कुछ मेरे लिए अजनबी था और मैं अपने हाथ की लिखी हुई उन याददाश्तों से भी कुछ याद न कर सकी। मैं अपने ख्यालात से चौंकी तो उस वक़्त जब एक आदमी मेरे बेड के करीब आकर खड़ा हो गया। वह पिस्ता का गोल मटोल सा शख्स था और जिसने सफ़ेद धोती और खद्दर का कुर्ता पहन रखा था। ज़ाहिर है कि वह हिंदू था और मटके की तरह फूला हुआ पेट अजीब सा तासर पेश कर रहा था। मेरा नाम चांद है, उसने रुमाल से पेशानी और गर्दन पर बहने वाला पसीना पोंछते हुए अपना तारफ़ कराया। मैं रेलवे ऑफिसर हूँ और इस ट्रेन में सफ़र कर रहा था जिसमें आपके साथ ये हादसा पेश आया। मुझे मालूम हुआ था कि आप अपनी याददाश्त खो चुकी हैं। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपको पूछने के लिए चला आया। मुसाफिरों की देखभाल करना हम अपना फ़र्ज समझते हैं। कहिए अब आपको कुछ याद आ रहा है या नहीं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए नफ़ी में सर हिला दिया और वैसे वो शख्स मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया था और मेरी ख्वाहिश थी कि वो ऊट पटांग सवालात से मेरा दिमाग ख़राब करने के बजाय जल्द से जल्द चला जाए। चंद रस्मी बातों के बाद उसने बताया कि रेल की पटरी के करीब एक खाली सूटकेस पड़ा हुआ मिला है जो इस वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और वो मुझसे उसकी शिनाख्त चाहता है कि वो मेरा है या नहीं। ये जानने के बाद मैं अपनी याददाश्त खो चुकी हूँ। उसका ये सवाल ही अहमकाना था। भला मुझे क्या मालूम कि मेरे पास क्या कुछ था। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे साथ नहीं जा सकती और डॉक्टर मुझे आराम का मशवरा दिया है। ठीक है, मैं डॉक्टर से मालूम कर लेता हूँ और मुझे यकीन है कि वह तुम्हें मेरे साथ जाने की इजाज़त दे देगा। और वो कहता हुआ वार्ड के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। हसीना उलझी हुई निगाहों से चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही और फिर मेरा सामान दुरुस्त करने लगी। कुछ देर के बाद वह शख्स वापस आया और मेरे चेहरे पर नज़रें जमाए हुए उसने ये इत्तला दी कि डॉक्टर बिमला ने कल मुझे इसके साथ जाने की इजाज़त दे दी है। मुझे अफसोस है कि मैं कल भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगी और अगर तुम कोई सूटकेस शिनाख्त करवाना चाहते हो तो उसे यहाँ क्यों नहीं ले आते। और मैंने जवाब दिया। ना जाने क्या बात थी कि उसकी नज़रें मुझे अपने जिस्म पर सुई की तरह चुभती हुई महसूस हुई। सूटकेस यहाँ लाना दुरुस्त नहीं होगा। मैं परसों आ जाऊँगा या फिर उससे अगले दिन और मैं तुम्हारे सेहतयाब होने का इंतज़ार कर सकता हूँ। मैं फिर आऊँगा। और वह ये कहता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
चांद चला गया, लेकिन मेरे लिए कुछ और उलझनें पैदा हो गईं। न जाने क्या बात थी कि उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करती रही, और हसीना कुछ देर तक मेरे पास बैठी रही और फिर किसी काम का अज़र पेश करके वार्ड से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मैं एक बार फिर अपनी चीज़ों और कागजात का जायज़ा लेने लगी, लेकिन हर चीज़ और हर तहरीर मेरे लिए अजनबी थी। ये सब चीज़ें मेरी मलकियत थी, लेकिन उनमें से कोई भी चीज़ मुझे अपना खोया हुआ माजी याद दिलाने में मेरी मदद ना कर सकी। कुछ देर के बाद मैं वार्ड से निकलकर अस्पताल के सहन में आ गई, और सूरज अगरचा मगरब की तरफ झुक रहा था, मगर उसकी हिद्दत बरकरार थी। अस्पताल की शिकस्ता दीवार के दूसरी तरफ एक जोहर नजर आ रहा था, और जिसके गंदे पानी में मवेशी और नंग धरंग बच्चे नहा रहे थे, और किनारे पर एक तरफ चंद औरतें कपड़े धो रही थी, और उनके करीब ही 3-4 खारिशज़दा कुत्ते पानी में बैठे हुए थे। और मुझे वहां खड़े ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि डॉक्टर बिमला का मतहत तेज तेज कदम उठाता वहां पहुंच गया, और उसके खून आलूद हाथ देखकर मैं बुरी तरह चौंक गई। अरे क्या हुआ, और तुम्हारे हाथों से खून कैसे बह रहा है? मैंने उसके करीब पहुंचने पर पूछा। मुझे कुछ नहीं हुआ, और ये खून मेरा नहीं, और वह कहता हुआ जल्दी से आगे बढ़ गया। उसी वक्त 2 आदमी का स्ट्रेचर उठाए हुए वहां पहुंच गए, और स्ट्रेचर पर एक मोटे आदमी की लाश थी। लाश के जिस्म पर कई जगह गहरे जख्म नजर आए, और उसे बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था, और वो लोग लाश को कहीं दूर से उठाकर लाए थे। सांस लेने के लिए उन्होंने स्ट्रेचर बरामदे में रखा, और मैं कुछ और आगे बढ़ गई, और लाश का चेहरा देखती में बुरी तरह बदहवास हो गई। वो मिस्टर चांद था, जो रेलवे ऑफिसर की हैसियत से मुझसे मिला, और अभी मैं लाश को अच्छी तरह देख भी ना पाई थी कि डॉक्टर बिमला भी वहां पहुंच गई। तुम अपने बेड पर जाओ मिस आलिया, और मैं कुछ देर के बाद तुमसे बात करूंगी, और डॉक्टर बिमला ने मुझे मुखातब करते हुए कहा, और आदमी को स्ट्रेचर उठाने का इशारा किया। मैं अपने बेड पर आ गई और खिड़की से बाहर का मंजर देख रही थी। बरामदे में अब कस्बे के बहुत से लोग जमा हो चुके थे, और ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि हसीना तेज तेज कदम उठाती हुई मेरे पास आकर खड़ी हो गई, और वो कुछ अफसरदा सी नजर आ रही थी।